Hello students, hope you all are doing good. I am Subodh Mishra and I am here to discuss the topic waste and its management with all of you. It is taken from your book Our Environment, which is there for all the classes of upper primary level, that is class 6th, 7th and class 8th also. Here are the few learning outcomes of this lesson. At the end of the lesson, students, that means all of you, will be able to first is recognize different types of waste. Second is you will be able to identify the importance of waste management in the society. Third is you will become aware of importance of recycling and ways of disposing the waste. Fourth is you will become aware about the responsibility to protect our environment. And fifth is you will be able to connect yourselves with various diseases arising out due to the accumulation of waste. Now, in this lesson, we will go through these topics. We will know about types of waste. We will know about the sources of waste. We will get to know about what is e-garbage. We will know the impacts of waste accumulation. Then we will go through the waste management and the 4R principle. Then we will know the various government efforts related to waste management. So let's get into the detail one by one. First thing first, what is waste? So we will define waste as useless substances which are the result of daily activities of humans and other organisms are called waste products. So the waste products or waste, these are the substances and objects which we do not need and we throw it. मतलब जिन चीज़ों का हम यूज़ कर नहीं कर पाते हैं और उसे फेंक देते हैं उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं. जनरली वी कॉल इट गार्बेज. There are so many kind of waste products that are released from various sources like houses, offices, factories, industries, motor vehicles, agricultural fields and so on. जनरली वेस्ट को हम क्या करते हैं उन्हें डिस्पोज करने के लिए या तो लैंड पे या फिर वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज कर देते हैं जो दैट लीड्स टू द पोल्यूशन ऑफ आवर वाटर बॉडीज एज वेल एज आवर सॉइल. So let's know the type of waste. Here we have a very general classification of waste products. We can classify the waste products into three types. That is, first is solid waste, second is liquid waste, and third is gaseous waste. First, we will see what is solid waste. We will understand solid waste through few examples rather than some definition or something else. We will go through examples. So we have examples of solid waste as fruits and vegetable peels, मतलब फलों और सब्जियों के जो छिलके होते हैं जो हमारे हाउस होल्ड से निकलते हैं. Then broken utensils, useless objects of glass, plastics and iron. Then ashes from houses and industries are few examples of solid waste. Now we can further classify solid waste into biodegradable waste and non-degradable waste. First we will know what is biodegradable waste. It is a kind of waste which decomposes such as fruits and vegetable peel, spoiled food, excreta of humans and animals, etc. So second is non-degradable waste. This is a kind of waste which cannot be decomposed itself and remain in the environment in any form, like waste from factories, polythenes,
plastics, and metal, etc. We can see few examples of biodegradable and non-biodegradable waste from a given image. Like biodegradable waste consist of peels of vegetables and fruits. Then we have paper and wood. This is an example of biodegradable waste. Then we have plastic bags, glass bottles, cans. These are few examples of non biodegradable waste. Now let's know what is liquid waste. Liquid waste nothing but useless liquids which are hazardous to human being or environment or both are called liquid wastes. मतलब यूजलेस लिक्विड्स, वो यूजलेस लिक्विड्स जो कि ह्यूमन बीइंग या फिर इन्वायरमेंट के लिए हैजार्डस हैं, उन्हें हम लिक्विड वेस्ट का नाम देते हैं. वी हैव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड वेस्ट एज dirty water of drains, toxic liquid from fertilizers, and then hazardous liquids from industries. These are few examples of liquid waste. We have so many examples of liquid waste also, but we basically have जो हमारे नालियों से गंदा पानी आता है वो एक एग्जांपल हो गया आपका. देन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और अदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, जब वहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो फिर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल वाटर के फॉर्म में या वाटर में मिला हुआ रहता है और उसको हम किसी भी वाटर बॉडी में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडी होती है वो पूरी की पूरी पोल्यूट हो जाती है. तो इन सब को हम लिक्विड वेस्ट का नाम देते हैं. Now we will know what is gaseous waste. Gaseous waste are nothing but the harmful gases released in the atmosphere due to various human activities. बेसिकली मोस्ट ऑफ द गैसियस वेस्ट जो होता है वो स्मोक के फॉर्म में होता है, धुएं के फॉर्म में होता है. अब वो धुआं हमारा कई सोर्सेज से आता है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में जो हमने चिमनीज़ लगाई होती हैं वहाँ से स्मोक निकल के आता है. देन जो ट्रेडिशनल चूल्हाज हुआ करते थे वहाँ पे जब हम कुकिंग करते थे तो वहाँ से स्मोक निकला करता था. देन वी हैव सिगरेट्स का स्मोक. वी हैव जब हम वुड वुड को जलाते हैं या कोल को जलाते हैं तो बहुत सारा स्मोक निकल के आता है. तो ये सारा जो है गैसियस फॉर्म में वेस्ट का एग्जाम्पल है. जो स्मोक होता है इसमें हमारा बेसिकली कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं along with some other harmful particles, and other harmful gases are also present in this gaseous waste. I have written few examples of gaseous waste as smoke from chimneys. Obviously जो चिमनीज से धुआं निकल के आता है वो एक gaseous waste का एग्जाम्पल हो गया. देन स्मोक फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, जो रोड्स पे हमारे बहुत सारे मोटर व्हीकल्स चल रहे हैं उसमें से धुआं निकल के आता है, स्मोक निकल के आता है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस वेस्ट. देन ऑर्डर ऑफ गैसेस फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स. जब हम कई बार हम नोटिस करते हैं कि रोड पे चलते हुए हमें अचानक से एक बैड स्मेल आती है किसी जानवर के मरने की या किसी तरीके की बैड स्मेल आती है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ gaseous waste. Now we will discuss various sources of waste products. There are so many sources of waste products, out of which first is garbage from houses and offices. There is huge amount of garbage which comes out from our own houses. Like we have kitchen garbages like fruits and vegetable peels, then spoiled food, then dirty water from our domestic work, such as we bath every day, we wash our clothes every day, the toilet waste, then animal waste, then polythenes, broken articles, so many things, old newspapers, old files, expired medicines. So many things comes out our own houses in our everyday life.
That is a huge amount of garbage from our houses and offices. Then second is garbage from crops. Garbage from crops include dry leaves, unused stems, branches, fertilizers and pesticides. So many things comes out of crops also. Then we have third is garbage from industries. Industrial garbage includes uh, basically it includes most it covers most part of liquid waste and gaseous waste, like we have hot water, we have ash, we have smoke, we have so many materials released from thermal power plants, nuclear plants and other industries in the form of industrial waste. Now we will see what is e-garbage. E-garbage or e-waste, also called electronic waste. It includes defective computers, defective mobiles, CDs, batteries, and then defective electronic equipments like TV, refrigerators, washing machines, ACs. जैसे कि हम देखते हैं कि जो हम बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमारे हाउस होल्ड आइटम्स में होते हैं जो अ, एक जिनकी हर लाइफ होती है, तो एक लाइफ के बाद वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए या फिर रेफ्रिजरेटर्स हो गए या वॉशिंग मशीन्स ही हो गई, तो इन चीज़ों की एक लाइफ होती है, जैसे 5 साल 6 साल 7 साल चलने के बाद ये ख़राब हो जाती हैं। तो जब ये डिफेक्टेड हो जाती हैं तो इनको हम कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तरीके का हम वेस्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ई गार्बेज और ई वेस्ट। Now we will see the impacts of waste accumulation. Till now we have seen the different types of waste released from various sources. अगर ये वेस्ट इकट्ठा होता रहा, कलेक्ट होता रहा, एक्यूमुलेट होता रहा, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा और साथ ही साथ इट विल हैव अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. We have so many examples of bad effects of waste accumulation or waste collection. अगर हम इस वेस्ट को अपने आसपास एक्यूमुलेट होने देते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ हमें हो सकती हैं, लाइक डायरिया, वोमिटिंग, टाइफाइड, डिphtheria, हेपेटाइटिस, देन वी कैन डैमेज आवर किडनीज ऑल्सो, nerve including nerve disorders and skin diseases, so many skin diseases. These are few diseases related to the waste accumulation. Except these diseases, there is a very huge, or we can say very harmful example uh, of impact of waste accumulation. Like first is Bhopal gas tragedy. Uh, this was on December 1984. It was due to leakage of methyl isocyanate gas from a factory of Bhopal. मतलब 1984 दिसंबर की बात है कि एक फैक्ट्री है भोपाल के अंदर, वहाँ की फैक्ट्री से जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी वो लीक हो गई। उसके लीकेज की वजह से उस एरिया में लाखों लोग अफेक्ट हुए एंड देन thousands of people were died due to the leakage of this gas only. So many people had suffered with many diseases such as cancer, headache, asthma, and numbness due to this incident, which is known as भोपाल गैस ट्रेजेडी. इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे फेटल केमिकल्स ऐसे थे जो वहाँ की सॉइल में आज भी प्रेजेंट हैं और आज भी वहाँ की जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो इस ट्रेजेडी से अफेक्टेड हैं. Second example we have is DDT, which is a pesticide used to destroy insects and to enhance our crop production, but they are present in soil for very long time. मतलब DDT का जो यूज़ होता है वो इंसेक्ट्स को मारने के लिए किया जाता है और क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए किया जाता है, बट
जो डीडीटी है ये सॉइल के अंदर बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ ये ह्यूमंस इंक्लूडिंग एनिमल्स के हेल्थ पे भी बहुत ही बैड इफ़ेक्ट डालता है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसके यूज़ को ऑलरेडी बैन कर रखा है, बट इंडिया में अभी भी डीडीटी का यूज़ हो रहा है। We have third example of asbestos, which is a fibrous silicate material. जो एस्बेस्टस होता है इन शीट्स का यूज़ किया जाता है रूफ्स और फ्लोर बनाने के लिए, बट ये जो सिलिकेट मटेरियल है ये हमारे लंग्स को भी डैमेज कर सकता है। इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एस्बेस्टियोसिस। ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है, और इस डिजीज़ को हम नाम देते हैं एस्बेस्टोसिस के नाम से, जो कि बेसिकली हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को इम्पैक्ट डालता है। We have fourth and very classic example of waste accumulation impact is Minamata disease, which happens due to mercury. Now let's know what is mercury first. Mercury is a metal which is in liquid form at room temperature, but very easily it evaporates. Very easily it evaporates and dissolves in the atmosphere. And once it is dissolved in the atmosphere, it remains there for very long time. फिर ये हमारे बॉडी के अंदर एयर वाटर और सॉइल के थ्रू एंटर कर सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे लंग्स को, हमारी किडनीज को ये बुरी तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है। मिनामाता डिजीज़ वॉज नेम्ड, इसके पीछे एक वेरी इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है, दैट इज़ देर वॉज अ कंपनी, देर वॉज अ प्लांट इन जापान नेम्ड सेसो कॉरपोरेशन। इन्होंने क्या किया, मिनामाता बे के अंदर मरकरी को डंप कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जो फिशेस थी उन्होंने मरकरी का इंटेक किया, और उन फिशेस का इंटेक जब वहाँ पे रहने वाले लोगों ने किया तो उन्हें एक तरह की डिजीज हुई रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, दैट वाज कॉल्ड मिनामाता डिजीज। As we have already seen the type of waste, sources of waste, and impacts of waste accumulation, now we will go further into the topic, and we will see the need of waste management, मतलब waste को manage करने की क्या ज़रूरत है। Then we have few reasons why we need waste management. The first is rapidly increasing population. Yes, of course, our population is increasing day by day and very rapidly. Second is changing lifestyle. Third is use and throw culture. Obviously, we have adopted this new culture, use and throw culture. We use the things and simply throw it. Then fourth is increasing pollution and dirt from villages to towns. तो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली जो वेस्ट का जनरेशन है वो भी बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है इसकी वजह से भी वेस्ट का जनरेशन इंक्रीज़ हुआ है। देन यूज़ एंड थ्रो कल्चर जो हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं, चीज़ों को यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं, इसकी वजह से भी गार्बेज जो है, वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। देन वी कैन सी कि किस तरह से पॉल्यूशन जो है वो और डर्ट है वो विलेज और टाउन सिटीज़ हर जगह बढ़ता चला जा रहा है। तो इन सब को मैनेज करने के लिए, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एज यू कैन सी इन द इमेज की किस तरह से पाइल ऑफ गार्बेज एक्यूमुलेट हो गया है एक जगह पे। ये सीन्स हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे वो विलेज हो, सिटी हो या टाउन हो। वी कैन सी द ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन एनी ओपन एरिया। और जिस जगह पे ये वेस्ट एक्यूमुलेट होता है, कलेक्ट होता है, वहाँ की सराउंडिंग वेरी बैडली पोल्यूटेड हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें इस वेस्ट को मैनेज करने की ज़रूरत है। नाउ वी विल सी द प्रिंसिपल ऑफ 4 R's,
That means this is the principle related to the waste management. 4 R's means uh, we will see that R1 stands for refuse, R2 stands for reduce, R3 stands for reuse, and R4 stands for recycle. Now let's see them one by one. R1, that stands for refuse. What does it mean? What means refuse? Refuse means do not use polythene and plastic made items and also prevent others from using it too. That means जो हम प्लास्टिक की चीज़ें या पॉलीथीन का यूज़ करते हैं उसको हम रिफ्यूज़ करेंगे, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे और लोगों के भी को भी यूज़ नहीं करने देंगे. न सेकेंड आर स्टैंड्स फॉर रिड्यूस. reduce Reducing means we will use the things according to our requirement, जिससे जो वेस्ट का एक्यूमुलेशन है वो कम होगा, वेस्ट का जो कलेक्शन है वो कम होगा. लाइक हम फ्यूल के यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं. देन एनर्जी के यूज़ को भी रिड्यूस कर सकते हैं, वाटर के यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं. Now let's come to R3. R3 stands for reuse. There are so many things जिनको हम थ्रो करने की बजाय उसका रीयूज़ कर सकते हैं. लाइक कोई पेपर है जो कि एक साइड से प्रिंटेड है तो उसको हम रफ वर्क में ले सकते हैं, दूसरी साइड से रफ वर्क में ले सकते हैं. वंस वी हैव टेकन इट इन आवर रफ वर्क, वो अगर दोनों साइड से यूज़ हो चुका है तो उसको हम पेपर बैग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सिंपली सिमिलरली वी हैव हम ऐसे पेन्स का यूज़ करें जिसमें रिफ़िल का यूज़ किया जा सके, जो रिफ़िल हो सके. एंड लास्ट आर स्टैंड्स फॉर रिसाइकिल. Recycle. What is the meaning of recycling? Recycling means use of waste and useless things by converting them into a new form is called recycling. मतलब जो चीज़ें हमारे लिए वेस्ट हो चुकी हैं, ये यूज़लेस हो चुकी हैं, उसको हम एक नए फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़फुल बना सकते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग. लाइक वी हैव old vehicles or old newspapers or plastic made things. These things can be easily recycled to a new form. तो हम उन चीज़ों का रिसाइकलिंग करके या रिसाइकलिंग करवा के उनका वापस यूज़ में ले सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग. तो इस 4R प्रिंसिपल का यूज़ करके हम वेस्ट को ईजिली मैनेज कर सकते हैं. और we can see in this image also what we have to refuse, that we do not buy unnecessary things and we do not cut trees. Then R2 reduce, we will reduce fuel consumption, energy consumption, water consumption. Then we will reuse the things and we will recycle the things. Now, our next topic is disposal of solid waste. As we already know कि waste जो होता है, that is there are 3 types of waste: solid waste, liquid waste and gaseous waste. तो इन तीनों का जो डिस्पोजल होता है वो भी डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होता है. लाइक फर्स्ट वी विल सी द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. The first process of disposal of solid waste is burning. Burning means कि जैसे हॉस्पिटल का जो सॉलिड वेस्ट हमारे पास आता है या फिर जो पॉलीथीन्स होती हैं, तो इन सबको हम बर्न करके डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. अब जैसे आपके पास हॉस्पिटल का सॉलिड वेस्ट है तो उसको डिस्पोज करने के लिए हमें स्पेशल फर्नेसेस की ज़रूरत होंगी, बिकॉज जो ये हॉस्पिटल्स का जो सॉलिड वेस्ट होता है दैट इज़ वेरी इन्फेक्शियस. बट अदर तरीके के जो सॉलिड वेस्ट है हमारे पास, लाइक पॉलीथीन्स, क्रॉप्स, प्लास्टिक्स, तो इनको हम बर्न करके इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. बट यस, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वी हैव टू केयर ऑफ कि
हम ओपन एरिया में इनको बर्न ना करें, बिकॉज़ बहुत सारी हार्मफुल जो इसको बर्न करने से स्मोक निकलता है उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकती हैं. The second method for disposal of solid waste is landfilling. This is very old and traditional method of disposal of solid waste. इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट होता है हमारे पास, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसको अपने रेजिडेंशियल एरिया से कहीं दूर एक लैंड पे एक्यूमुलेट करते हैं और उसको सॉइल से दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं. तो नाउ डेज हम क्या करते हैं कि किसी गड्ढे को भरने को, कहीं पे अगर हमारे रेजिडेंशियल एरिया के आसपास कोई गड्ढा है तो उसको भरने के लिए हम अपना जो सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करते रहते हैं. बट यस, ऑब्वियसली जो जो भी वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है हमारा, उसका ऑर्डर उसके आसपास के एरियाज में ज़रूर आपको मिलेगा. Now, third method of disposal of solid waste is composting. Now, composting में क्या होता है कि जैसे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है हमारे पास, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स होते हैं या फिर एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स हैं, देन वी हैव ड्राई लीव्स एंड ब्रांचेस. इन सबको हम क्या करते हैं, एक पिट के अंदर सप्रेस कर देते हैं और उसको सॉइल से कवर कर देते हैं. नाउ विद आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2-3 months it will be converted into the manure. Now this manure can be used in garden and farming also. This method is considered as the best way to recycle the biodegradable waste. It has it comes with two benefits. First is कि we get manure also, and second is the waste which we wanted to dispose is completely disposed of. Now we will see disposal of liquid waste. Now, liquid waste should be treated before draining into water sources. Obviously, uh, बिकॉज जो लिक्विड वेस्ट का जो मेजरली जो सोर्स है वो हमारा इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं, तो वहाँ से जो लिक्विड आता है दैट इज़ वेरी हजार्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ. तो अगर हम बिना ट्रीट किए उस लिक्विड वेस्ट को अगर किसी भी वाटर सोर्स के अंदर ड्रेन करते हैं तो पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी होगा वो कहीं ना कहीं पोल्यूटेड हो जाएगा. तो वी हैव टू ट्रीट द लिक्विड वेस्ट बिफोर ड्रेनिंग इनटू द वाटर सोर्सेज. नाउ वी हैव टू थिंग्स फॉर disposal of liquid waste or treat for the treatment of liquid waste. First is sewage treatment plants in city, and second is soak pits in villages. मतलब सिटीज़ के लिए जो सिटी के बाहर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहाँ पे पूरे शहर का जो गंदा पानी होता है, जो ड्रेनेज का पानी होता है या इंडस्ट्रियल वाटर होता है, वो पूरे शहर का इकट्ठा होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर और वहाँ पे उस वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है. और सिमिलरली गांव में हम सोक पिट्स के थ्रू वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. लेट्स सी गैसियस वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल ऑफ गैसियस वेस्ट. गैसियस वेस्ट को किस तरह से हम कम कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस हैं. लाइक वी कैन सी इन द इमेज ऑल्सो कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज, प्लांटिंग मोर ट्रीज. वी शुड यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. वी शुड यूज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स लाइक बाईसाइकिल्स जिनसे स्मोक नहीं निकलता है. देन वी शुड यूज़ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसमें बर्निंग नहीं होती. देन वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जितना ज़्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे उतनी कम मोटर व्हीकल्स रोड पे चलेंगी और उतना ही कम पॉल्यूशन होगा या उतना ही कम स्मोक रिलीज होगा एटमॉस्फेयर के अंदर. सो वी कैन सी सम processes through which we can manage the
gaseous waste. Like, first is increasing the heights of chimneys, then second is putting dormant precipitated to the chimney, third is using biogas and LPG. This is biogas and LPG are considered smoke free sources of smoke free sources for cooking. एंड देन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। मैंने अभी बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोटर व्हीकल्स जो प्राइवेट मोटर व्हीकल्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है रोड पे। एंड देन जो स्मोक निकलता है मोटर व्हीकल से वो भी कम होता जाता है। इंक्लूडिंग चिमनी की हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क कम होगा कि जो हार्मफुल गैसेस हैं वो हो सकता है कि हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएं। नाउ लेट्स गो थ्रू वेरियस गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ गवर्नमेंट इज मेकिंग और कंस्ट्रक्टिंग द ड्रेन्स and they are also looking after the cleaning of drains regularly। जो दे आर मेकिंग श्योर कि जो भी ड्रेन्स हैं वो रेगुलरली साफ़ होती रहें। देन दे आर obviously they are constructing the public toilets everywhere, either it's village, city or town, everywhere you can see public toilets। then they are setting up biogas plants, they are promoting the use of smoke free stoves and LPG also। then they are making huge plantations on public land। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारा एफर्ट कर रही है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। वो नालियाँ बना रहे हैं, वो नालियों को साफ़ करवा रहे हैं, वो एवरीवेयर दे आर कंस्ट्रक्टिंग पब्लिक टॉयलेट्स, दे आर प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ स्मोक फ्री कुकिंग गैस। देन यू दे आर ऑल्सो मेकिंग ह्यूज प्लांटेशंस ऑन पब्लिक लैंड। नाउ what is our responsibility? Identification of factors of pollution and taking appropriate actions to prevent it is the responsibility of all of us। मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पोल्यूशन के भी जो भी फैक्टर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनको रोकने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव अ कोड दैट सेव थिंग्स और वेस्ट थिंग्स, इट्स योर चॉइस। हम चीज़ों को बचाते हैं या वेस्ट करते हैं ये हमारी चॉइस है। सो अर्थ इज़ बेसिकली इन आवर हैंड्स। Meet our team. This is presented by Subodh Mishra, assistant teacher, and coordinated by Mr. Upendra Yadav, lecturer, Diet, Sant Kabir Nagar, directed by Mr. Dhirendra Pathi, principal,